شادی کے بعد میرا شوہر دوسرے شہر میں کام کرتا تھا اور میرے ساتھ میرا دیور رہتا تھا۔ شادی کے کافی عرصے تک میں حاملہ نہ ہوئی تو میرا دیور باتوں باتوں میں مجھے ایسی چیز کھلا دیتے جس کے بعد میں حاملہ ہو گئی۔ جب میری اولاد پیدا ہوئی تو میرا دیور کہنے لگا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ کہنے لگا کہ میں روز رات کو میرا نام صبا ہے، میں بہت ہی خوبصورت تھی اور میری شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں پر صرف میرا شوہر اور میرا دیور ہی رہتا تھا۔ میرے سسر باہر کے ملک ہوتے تھے، یہ لوگ بہت امیر تھے، میری ساس بھی نہیں تھی۔ پہلے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس گھر میں کوئی ساس نہیں ہے، کوئی نند نہیں ہے، کوئی جٹھانی نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہاں پر رہنا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ یہ گھر صرف مردوں کا گھر تھا۔ میں اپنی کوئی بات بھی کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر بھی میرا کافی سنجیدہ مزاج قسم کا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میری شادی کر کے اس ملک سے چلے گئے کیونکہ وہ میری شادی کروانے کے لیے یہاں آئے تھے۔ میرے ماں باپ مجھے پاکستان میں بیاہنا چاہتے تھے تاکہ میں اپنی مٹی سے قریب رہوں۔ قریب تو میں ہو گئی لیکن میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اسی پریشانی کی وجہ سے میرے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے آپ کو خون کی کمی ہے، آپ اداس رہتی ہیں، اپنا ماحول بدلیں، رہن سہن بدلیں، کہیں باہر آئے جائیں، وہ کام کریں جس سے آپ کو خوشی ملے۔ لیکن میرا شوہر ایسا کام کرتا تھا کہ وہ ایک دن کی چھٹی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس گھر میں میرا دیور ہی تھا جو میرے ساتھ کوئی بات کر لیتا ہے۔ وہ میری عمر کا تھا، دیکھنے میں بہت ہی حسین تھا، میرے شوہر کے مقابلے میں ایک اچھا انسان بھی تھا، ہنسی مذاق بھی کرتا تھا، لیکن اس کی بھی اپنی دنیا تھی جس میں سے وہ میرے لیے وقت نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ یونیورسٹی جاتا تھا، اپنے دوستوں کو وقت دیتا تھا، پھر اپنے فون میں مصروف بیٹھا رہتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کب وہ فارغ ہو کر آئے گا اور میرے ساتھ باتیں کرے گا تو میرا کچھ وقت اچھا گزر جائے گا۔ وہ باتیں بہت اچھی کیا کرتا تھا۔ اس کا نام کاشف تھا۔ کبھی کبھی ہم دیور بھابھی کوئی پلان کر لیتے تھے، وہ کوئی کھانے کی چیز لے آتا، کوئی پیزا وغیرہ، تو ہم مل کر پیزا کھا لیتے، ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے تو وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ یہ بات میرے شوہر کو بھی پتا تھی۔ میرا شوہر کہتا تھا اس سے تھوڑا دور رہا کرو۔ میں نے کہا کہ وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، اسی گھر میں رہتا ہے۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے لیکن زیادہ باتیں مت کیا کرو۔ میں اپنے شوہر سے کہہ دیتی میں اس سے کوئی بات نہیں کرتی، لیکن اصل میں ہم آپس میں باتیں بھی کیا کرتے تھے اور ہماری زندگی اسی طرح چل رہی تھی۔ میری شادی کو کافی وقت گزر گیا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ 13 سال ہو گئے لیکن میرے گھر میں ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ میں بانجھ مشہور ہوئی جا رہی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آج ہی اپنے شوہر سے بات کریں کہ وہ آپ کا ماحول بدلے اور آپ کو کسی پرسکون جگہ پر لے جائے۔ لیکن جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کی تو میرے شوہر نے مجھے ایک نئی خبر سنا دی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے اور میں وہیں پر رہوں گا شاید 10-11 مہینے کے لیے۔ جب اس نے یہی بات کر دی تو میں اس کے بعد کیا کہہ سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی بات آخری بات ہوتی تھی۔ وہ ایک دفعہ جو کہہ دیتا تھا پھر وہی ہوتا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا سامان پیک کر دیتی ہوں۔ میرا شوہر شہر سے باہر چلا گیا اور اب میں گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ لیکن انہی دنوں میرے دیور نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ جاتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں نے دکان والے کو گھر کا نمبر دے دیا ہے، کوئی بھی چیز چاہیے ہو تم فون کرنا، وہ چیزیں گھر دے جائے گا۔ میں نے کہا چیزیں منگوانے کی کیا ضرورت ہے، کاشف مجھے لا دیا کرے گا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تم نے اس سے کوئی چیز نہیں منگوانی اور اس سے بات بھی نہیں کرنی، وہ اپنے کام سے کام رکھے گا، تم اپنے کام سے کام رکھنا۔ اس کے لیے کھانا بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ باہر سے کھا لے گا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو کہنے لگے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم نے میری بات مانی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہوئی تو تمہیں بتاؤں گا۔ اس سے دور رہنا۔ میری ایک تائی امی عمرے پہ گئی ہیں، وہ جب واپس آئیں گی تو وہ بھی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آ جائیں گی،
तुम्हारा ख्याल रखेंगी, तुम्हारा दिल नहीं घबराया करेगा। अजीब बात थी कि मेरा शौहर जाने से पहले मेरे देवर से मिलकर भी नहीं गया था। शायद भाइयों के बीच में कोई नाराजगी थी, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था क्योंकि मेरा देवर छोटा था और मेरे शौहर ने हमेशा उसका एहसास किया था। मुझे लगा कि कोई छोटी सी बात होगी आपस में, दोनों भाइयों की हल कर लेंगे, लेकिन मैं अपने शौहर की ये बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी कि मैं अपने देवर से बात ना करती। मैंने उससे बात भी करनी थी, हमने मिलके गेम्स भी खेलनी थी और हमने साथ मिलकर ही रहना था जैसे हम पहले रहते थे। जब मेरा शौहर छोड़कर चला गया तो मेरा देवर एक दिन मेरे पास एक लड्डू लेकर आया, कहने लगा, भाभी आप इसे खाएंगी तो आपके यहाँ भाई के वापस आते ही हमल ठहर जाएगा। वैसे तो मैं अपने देवर से इस तरह की बात नहीं करती थी, लेकिन मेरा ये देवर कुछ अलग किस्म का था। हम एक दूसरे से दोस्तों की तरह बात कर लेते थे। उसने कहा कि बहुत वक्त हो गया है, भाई को एहसास नहीं है, आपका इलाज करवाते नहीं हैं, आपको कहीं दम करवाने भी नहीं ले जाते हैं। लेकिन मैं इस घर में बच्चे को देखना चाहता हूँ ताकि आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाए, इसलिए मैं ये दम करवा के लाया हूँ। 10 दिन तक आपको ये खाना होगा, उसके बाद भाई आएगा तो खुशखबरी भी आ जाएगी। मैंने अपने देवर का शुक्रिया अदा किया और उसे ये भी कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो जिसने मेरे लिए इतना सोचा। अल्लाह तुम्हें एक प्यारे से बच्चे का चाचू बनाए। मैंने वो लड्डू खा लिया और इसी तरह 10 दिन तक रोज वो लड्डू ये सोचकर खा लेती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा देवर भी रोज मुझे कहानियां सुनाता कि ये लड्डू तो फलां ने भी खाया था जहां से मैं लेकर आया हूँ, उनकी बड़ी हवा उड़ी है, लोग उनके पास जाते हैं और अपना मसला हल करवाते हैं, आपका मसला भी हल हो जाएगा। मैंने खसूसी दुआ भी करवाई है, लेकिन मेरे देवर ने मुझे ये भी कहा कि आपने ये बात अपने शौहर को बिल्कुल भी नहीं पता नहीं लगने देनी, क्योंकि वो ऐसी बातों पर यकीन भी नहीं करते और अगर उन्होंने ये जान लिया कि ये लड्डू मैंने आपको दिया है तो फिर तो वो मेरी जान ले लेंगे। मैंने कहा कि कोई लड़ाई चल रही है तो कहने लगा कि नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, वो जहाँ गए हैं वहां मुझे भेजना चाहते हैं लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, तो वो मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा, इतनी छोटी सी बात है, वो तो ऐसे नाराज हो रहे थे कि जैसे तुम्हारे साथ जीना मरना ही खत्म हो गया हो। कहने लगा, हाँ बस ऐसे ही हैं, फौरन से गुस्सा कर देते हैं। लेकिन इन दिनों मैंने अपने देवर में एक और बात नोट की थी जो पहले वो कभी भी नहीं करता था, वो ये कि अब वो रात को देर से घर आया करता था। मैं भी अकेली थी इसलिए मैंने उसे कहा कि जल्दी आ जाया करे, मेरा दिल घबराता है। उसने कहा कि भाभी जल्दी आने की कोशिश करता हूँ लेकिन काम ही ऐसा है, जो आपके लिए सुबह लड्डू लाता हूँ सारी रात उस पर अमल होता है और वो अमल कराने के लिए मुझे वहीं पर बैठना पड़ता है। 10 दिन तक मैंने वो लड्डू खाया और अपने शोहर को बहाने से बुला लिया, उसे कहा कि तुम आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है, मेरा भी दिल नहीं लगता, मैं अकेली हूँ। शोहर ने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा, यहाँ पर मेरा काम बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि हाँ आ जाएं, मुझे आपकी जरूरत है। लेकिन जब शोहर आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई, उसने मेरे देवर को सलाम तक नहीं किया, उसके पास से ऐसे गुजर गया जैसे वो बैठा ही नहीं था। मेरा देवर भी हैरान था क्योंकि इससे पहले वो ये कह रहा था कि जब वो आएंगे तो मुझे जरूर माफ कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मेरे शोहर ने ऐसा नहीं किया। मेरा शौहर मुझे अपने साथ दूसरे शहर में ले गया और मैं वहीं पर रहने लगी। अभी मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हुआ था कि पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर मेरे लिए ऐसी ही थी कि जैसे मरते हुए इंसान को जिंदगी मिल जाए। शादी के 13 साल बाद इस तरह की खबर मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैंने अपने शौहर को लड्डू वाली बात तो न बताई, लेकिन अपने देवर को ये बात जरूर बताना चाहती थी। मैंने कहा था कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम इसी शहर में रहेंगे। मेरा शौहर भी बहुत ज्यादा खुश था। जब मैंने अपने देवर को कॉल की तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मैंने घर के नंबर पर कॉल की तो नौकर ने नंबर उठाया और कहा कि छोटे साहब घर पे नहीं है और उनका फोन गुम हो गया है। मैं अपने देवर को ये बात ना बता सकी, लेकिन मैंने उसके लिए मैसेज जरूर छोड़ दिया कि वो कभी ना कभी देख लेगा।
शोहर ने कहा कि किसको मैसेज कर रही हो, तो मैंने कहा कि आने वाले बच्चे के चाचू को। तो वो कहने लगा कि कोई जरूरत नहीं चाचू कहने की, उसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे शोहर ने कहा कि उसने कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसलिए मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, उसे उसका हिस्सा दे दिया है और अब वो अपने हिस्से पर ही जिंदा रहेगा। हम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, वो स्याह करे सफेद करे हमें कोई परवाह नहीं होगी। मैंने कहा कि आपके अम्मी अब्बू ने मरने से पहले उसकी जिम्मेदारी आपको दी थी और आपने उसे उसकी हाल पर छोड़ दिया। तो मेरे शौहर ने कहा कि वो धोखेबाज है, चोर है और मैं ऐसे शख्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने अपने शौहर को इतना जरूर कहा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मेरे मामलात में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बीवी हो, तुम्हारा काम घर चलाना है और अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी है, अपना दिल अब औलाद में लगाओ, घर और बाहर के मामलात मैं देखूंगा। ये मेरा भाई है, तुम्हारा भाई नहीं। अगर तुम्हारा भाई होता तो फिर तुम बोल सकती। मैंने कहा कि वो मेरे लिए भी भाइयों की तरह ही तो था। मैं अपने शौहर को क्या बताती कि हमें मिलने वाली जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी की वजह से हमें मिल रही है। लेकिन मेरे देवर ने मुझे ये सब बताने से मना किया था, इसलिए मैं चुप कर गई। सच कहूं तो उसके बाद मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपने देवर को कॉल करूं या उससे कोई बात करूं। एक तो मेरा शौहर उससे बात करने से मना करता था और दूसरी बात ये कि मैं अपने आने वाले बच्चे की शॉपिंग और खुशियों में इतनी मसरूफ हो गई कि और किसी के बारे में सोचा ही नहीं। फिर अल्लाह ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया जिसको पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। दिन भर सजदे करती रही। बेटा 2 महीने का था तो अपने शौहर को कहा कि हम वापस घर जाएंगे क्योंकि मैं आपके साथ और इस बच्चे के साथ इस फ्लैट पे नहीं रह सकती, हमें घर में रहने की जरूरत है। मेरे शौहर ने कहा कि वो घर अभी भी मेरा ही है, बिल्कुल हम वहां पर जाएंगे और अगर मेरा भाई वहां पर आया तो मैं उसको इतने पैसे दे दूंगा जितना कि उसका उस घर में हिस्सा है। मैंने कहा जो भी करे पर मुझे घर जाना है। दरअसल मैं बच्चे को घर ले जाना चाहती थी कि अपने देवर से मिलवा सकूं और उसे बता सकूं कि वो प्यारे से बच्चे का चाचू बन गया है। हमें बताया गया था कि घर बंद है और मेरा देवर नहीं रहता, लेकिन जब घर में दाखिल हुई तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर कोई रह रहा था, जैसे इस घर में कोई औरत रही थी। और इसलिए मुझे पता चल गया है कि घर की हर चीज किसी औरत के इस्तेमाल में थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन वो औरत कौन हो सकती थी, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरा देवर वहां पर आ गया, मैंने बच्चा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि देखो ये तुम्हारा भतीजा है। मेरा शौहर भी वहीं बैठा था, लेकिन मैं फिर भी अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी। तो मेरे देवर ने कहा कि ये मेरा भतीजा नहीं है। उसकी ये बात सुनकर हम हैरान रह गए। मेरा शौहर भी बोल पड़ा था, बच्चे को प्यार नहीं करोगे? अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही अना भरी है तो निकल जाओ इस घर से। मेरे शौहर ने कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से। तो मेरा देवर बोला कि मैंने कहा कि ये मेरा भतीजा नहीं है क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरे शौहर के भी। उन्होंने कहा कि किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो, अपनी भाभी पर किस किस्म का घटिया इल्जाम लगा रहे हो। उसने कहा मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा बेटा है और इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूँ। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने उसको कहा ये क्या बात कर रहे हो, इशारा भी किया कि क्या हो गया है, तुम्हें क्या चाहते हो, तुम्हारी वजह से ये इस दुनिया में आया है, अब तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। मेरे शौहर ने कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम, क्या हुआ था, मैं जब यहाँ पर नहीं था तो क्या कुछ हुआ था। मैंने शौहर को सब कुछ बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस मैंने 10 दिन तक उसका लाया हुआ लड्डू खाया था, उसके बाद ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आया था। मेरे शौहर ने मेरे देवर का गिरीबान पकड़ लिया और कहा कि क्या किया है तूने, क्या मिलाया तो तूने उस लड्डू में, कहीं तुमने उसमें बेहोशी की दवा तो नहीं मिलाई थी, कहीं तूने कोई नापाक काम तो नहीं किया मेरी गैर मौजूदगी में। मेरा शौहर तो अजीब अजीब बातें कर रहा था।
लेकिन मैं ये सुनकर मरी जा रही थी कि जिसको मैंने अपने भाई जैसा समझा, अगर उसने मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत की थी तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरा दिल जलने लगा। उसने कहा कि ये मेरी औलाद है और मैं इसको हमेशा आपके पास नहीं रहने दूंगा। उसने कहा कि आप टेस्ट करवा लें, हमें पूरा यकीन था कि वो हमारा ही बच्चा है। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता और डीएनए टेस्ट हो भी जाता तो अंजाम क्या निकलना था। मेरे शौहर ने कहा, डीएनए टेस्ट करवाएंगे हम सारे अस्पताल पहुंच गए और फौरन टेस्ट कराया, लेकिन रिपोर्ट मिलने में 2 दिन थे। ये 2 दिन मैंने कैसे गुजारे मैं ही जानती थी। मेरा शौहर मुझे अजीब नजरों से देखता था, बार बार मुझसे एक बात पूछता था कि जब मैं घर पे नहीं था क्या होता था, तुम कौन से कमरे में सोती थी, तुम किस टाइम जागती थी, रात के टाइम तुमको ऐसा तो नहीं लगता था कि तुम बेहोश हो गई हो और तुम्हें कोई होश नहीं है, क्या तुम सोते हुए कमरे के अंदर से कुंडी लगाती थी। मुझे मेरे शोहर के सवालों ने परेशान कर दिया था। मैंने कहा कि मैंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, आपको मेरे यकीन करना पड़ेगा। 2 दिन बाद रिपोर्ट हाथ में आ गई। जब रिपोर्ट का लिफाफा खोलकर देखा और रिजल्ट देखा तो मेरे शोहर के हाथ से रिपोर्ट गिर गई, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा मेरे देवर का था, मेरे शोहर का नहीं था। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। मेरे शोहर ने भी मुझसे नजरें फेर ली, लेकिन मेरा देवर ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि भाभी, मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, इलाज हो सकता है, लेकिन आपके शौहर ने कभी भी आपका इलाज करवाया ही नहीं था। इसीलिए मैं आपकी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए आपका इलाज करवाना चाहता था कि मैं एक लड़की के साथ मोहब्बत करता था और उससे शादी कर चुका था। उसी के लिए मैंने पैसे चुराए थे, क्योंकि वो बहुत बीमार रहती थी, लेकिन वो फिर भी हमारा बच्चा पैदा करना चाहती थी। भाई ने मेरे साथ झगड़ा किया, मुझे इसकी वजह से सब कुछ छीन लिया। वो लड़की भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया। उसी दिन मुझे पता चला कि आपके यहाँ तो मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई है। आपका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका था और लड्डू वाली बात सिर्फ एक बहाना थी, उसमें आपको कोई दवाई मिलाकर देता था। वो दवाई जो बहुत ही खास थी और बहुत दूर से लाई गई थी। मुझे यकीन है इसका असर जरूर होगा, और असर हो गया क्योंकि आपने अपना दिमाग बना लिया था। बस इसको किस्मत कहे या जो भी, आपके यहाँ हमल तो हो गया, लेकिन आपका बच्चा बहुत कमजोर था, दुनिया में आते ही मर गया था। उस बच्चे की जगह मैंने अपना बच्चा रख दिया, क्योंकि मैं आपके साथ भलाई करना चाहता था, और ये भलाई मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा था, आपके शोहर के लिए नहीं। लेकिन फिर मुझे पता चला आपके शोहर ने मेरे साथ कोई भला नहीं किया और मुझे जायदाद से मुकम्मल तौर पर आंख कर दिया। इसलिए बदला लेने की खातिर मैं आपसे अपना बच्चा वापस छीनने के लिए आ गया। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास तो अब यही रह गया है। आपके शोहर ने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। मेरे देवर की आंखों में आंसू थे, वो भी रो रहा था। मैंने कहा कि मैं भी तो इसके बिना नहीं रह सकती। मैं अपने देवर के पैरों में बैठ गई और उससे कहा कि तुमने हमेशा मेरी मदद की है, ये बच्चा मुझे दे दो, मैंने इसी को अपना बच्चा समझा है। मैं 3 महीने से इसी को पाल रही हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत भला किया। अगर मुझे पता चल जाता कि मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, मेरी गोद खाली रह जाती, तो कसम से मैं उसी वक्त मर जाती। उसके मरने का दुख मुझे अब भी है, लेकिन ये मेरे हाथ में है, तो मैं जिंदगी को जीने के बारे में सोच रही हूँ। मैंने अपने शोहर से कहा कि आपने क्यों किया ऐसा, माफ कर दे, उसने जो किया मोहब्बत के लिए किया। आप तो हमेशा अपने काम में मसरूफ रहे, ना कभी मेरी तरफ देखा, ना मेरा इलाज करवाया। आपका भाई फिर भी मेरे साथ भलाई करता रहा, जबकि ये मेरे साथ बुराई भी कर सकता था। मेरे साथ वो सब कर सकता था जो आप इससे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसने फिर भी मेरी इज्जत का पास रखा, मेरी खातिर ये सब किया था, अपनी औलाद तक मुझे दे दी। अब आप उसको माफ कर दे। मेरे शौहर ने कहा कि जब तुम अपनी औलाद हमें दे सकते हो तो मैं तुम्हारा हक क्यों नहीं दे सकता। जो तुम चाहते हो तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे शौहर ने फिर ऐसी बात की कि हम तो हैरान रह गए। उसने कहा कि वो शर्त ये है कि सारी जिंदगी तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, ताकि तुम अपने बच्चे के साथ भी रह सको। मेरे और मेरे छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। हम लोग रोने लगे। उसने अपने बेटे को प्यार किया
और उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये आपका बेटा है, अब इसकी माँ आप कहलाएंगी और मैं इसका चाचू। इसको ये बात कभी नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं इसका बाप हूँ और इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और इस बच्चे को गले से लगा लिया कि वो मेरा ही बच्चा था। इस बात को 4 साल हो गए हैं। मेरा बेटा 4 साल का है, बहुत खुश है, मेरे शौहर को ही बाबा कहता है और मेरे देवर को चाचू। अल्लाह ने मुझे फिर से उम्मीद दी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत बड़ी खुशखबरी हमारी जिंदगी में आई है कि हम अपने देवर के लिए आज शाम को रिश्ता देखने जा रहे हैं। उसने कहा है कि किसी भी लड़की से शादी करने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना घर बसा ले और अपनी जिंदगी शुरू करे। हम लोग एक घर में रहते हैं और जायदाद हम सब की है।